just not possible. So whatever the And inside. how long has it taken you to paint, say, something like this or something like this? Different paintings. What's the fastest and what's the slowest? Like, can a painting go on for 6 months? Yes, yes, it can go up to No way. like You could. at any point I'm working at 4 to 5 canvases. So I keep shuffling between them. Some paintings have taken like backseat and gone in the. नहीं मन कर रहा है. अरे बाप रे. What's the quickest you've painted? Like, have you ever finished a painting like in a single session where it's just flowed? You have. That irrespective of the sizes. Yeah, but it could take the whole day, 24 hours. A day or 2 days. What I'm saying is, Yeah, yeah. sometimes you feel like in a single go. Sometimes I'm really good and I mean, that happens a lot. Fascinating. Sometimes I'm painting for 6 months at a stretch. You mean you're not painting? Square canvases. I've enjoyed doing What I like about this particular work is, I don't know, it's a sense of, like a three-dimension sense of it. You're experiencing it in the outer structure of the क्या canvas, कर रहा but है? you're also experiencing it within the painting, right? It's almost like it's popping out. It's popping out in the texture of the paint, but it's also popping out in the way you've played with the imagery itself, the way it's kind of coming out of the canvas. Or it's like almost like layers. You can sense the depths in it. Yeah. It's beautiful. I think one thing I've learned just now is the kind of questions you such intelligent questions and thoughts on how to look at a painting. As an artist, you always try to compare your inspiration to another artist. I can't paint for myself. I'm amazed even at my 6-year-old's work when she's painting. My sister paints herself. Wife dabbles every now and then, but I can't paint, right? For me, painting is just the best form of painting which I did was just putting raw paints on a piece of paper, folding it, squishing it together, opening it out and saying, oh, look at this. This is something interesting. So, but when I act, it's a different kind of structure or it's a different flow. So I was just trying to compare notes when you were saying, right, inspiration. Sometimes I just don't feel like going on set, but because it's a commitment, I have to go and I have to execute. And then when I'm inspired by a character, by a script, by the content, then I have sleepless nights. I can't wait. Like tomorrow morning, I'm going to go set and I'm going to do this and I'm going to do this with my works. It's super exciting. Yeah, sometimes I'm awake all night painting. I can't sleep. That's real. After doing this, like square canvases, I feel absolutely tired. Very cool. Very cool. Should you do that side? Are you picking your work or are you? Big critic, if I feel it's not actually lighted, I just think I need to go more. So till I find it. So it never gets into a negative loop of criticism. It never gets into this is shit. You know, you want to say that to I yourself. say there are no rules in art. There's nothing shitty in art. Everything is it's all on the page. But yeah, if I'm not happy, I keep working. I just love it. I love it. For me, it's a sense of an emergence, right? I see this bird flying through all these structures, right? I see that like each box to me represents a societal conditioning, a structure, right? And I feel like it's emerging out of that. It's kind of flying out of those structures. That's why I like this one. Probably most of what I've seen until now. It's beautiful. That's Because you see these boxes, right? All these boxes to me represent societal conditioning structure. This is exactly the kind of parents we're trying to be. We're trying to allow our children to fly out of these structures and say, you don't have to adhere, you don't have to conform, be your own person.
I'm here. सर इकडे इकडे सर Right to R if you can do. बेटा Left to right. यहाँ पे सर इकडे इकडे मैम यहाँ पे मैम हाँ ठीक है यहाँ देखिए बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ यू मिला मतलब बेटा One second. एक सेकंड One person's looking one way, the other person's looking the other Yeah. way. You find it hard to catch. समझन लेने का था This one's really interesting. Like the whole near dealer around. Sure, sure. सर विवेक सर यहाँ पे विवेक सर इकडे सर यहाँ पे सर थैंक यू सर सिंगल सर यहाँ देखिए सर लास्ट वाला एक सर यहाँ राइट में सर राइट एक आहे दोन मध्ये बघ. वीडियो वर पाठवा असं का? Pick that. This is less wide. No, I mean, even in terms of the shape, it's more of a traditional triangle. Started experimenting. With the journey that started from here. Really cool, this sense of the slope. नंदिनी थोड़ा ज्वाइन कर ले सबको बात Sir, up कहीं. Please, please come. हिंदी नहीं सीखी So, see that. Come back, please. Yes, absolutely. Together, yes. Relax, you are not being seen. If we can all look this way, please, center. Thank you. निकेश पूरा फ्रेम मिला? निकेश पूरा? शार्प वाटतं ना प्रिया जी, please. सर एक वन मोर करो एक बार और एक बार सर 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 सर
सर यहाँ पे देखिए उस तरफ चले जाओ उस तरफ सर विवेक सर वन हाथ लगा कैंडल टाटा That's why then I've let them untie the writing. Yeah, sure, let's just finish it. Okay, can we have some silence? गुड टू सी यू विवेक जी मैडम गुड टू सी यू थोड़ा सा पहले तो जानना चाहेंगे कि पेंटिंग के बारे में हमने देखा आप सारी पेंटिंग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, तो अगर आप बता सकें कि आपको लाइक कौन सी वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है आज की इस एग्जीबिशन के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार. थैंक यू फॉर कमिंग. आई थिंक आर्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. आई लव आर्ट, आई लव एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट. अनीता इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. इससे पहले जो उनकी उड़ान सीरीज़ थी वो बहुत सुंदर है. आई पर्सनली हैव सम वर्क्स ऑफ अनीताज दैट आर डिस्प्लेड ऑन माई होम वॉल्स वेरी प्राउडली. इट्स वाइब्रेंट. उनके रंग बहुत सुंदर हैं, उनके आकार बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड इस बार जो उन्होंने अवतरण सीरीज़ की है, ख़ास मुझे इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी. हर आर्टिस्ट का एक एवोल्यूशन होता है. हम भी जो काम करते हैं फिर सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या करें. एज एन आर्टिस्ट हम भी सोचते हैं कि नेक्स्ट इम्प्रूव कैसे करें, इवॉल्व कैसे करें. तो आई थिंक ये जो सीरीज़ है अवतरण, ये स्पेशली दिस बैच जो मैं देखने आया हूँ आज, ये अनीता के करियर में एज एन आर्टिस्ट बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है. अवतरण के बारे में ज़्यादा तो वो बताएंगी, लेकिन मेरा एज अ ले पर्सन जो आर्ट अप्रिशिएट करने आए हैं, तो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने डिसरप्शन किया है. उन्होंने चीज़ को क्रिएटिव डिसरप्शन, उन्होंने चीज़ को जो टिपिकल हम कैनवस देखते हैं तो उसका स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल होता है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल तोड़ दिया. और उसके अलावा जो चीज़ें थोड़ा और देखने के बाद में अगर एंगल से देखें तो उन्होंने इसके अंदर ही स्लोप्स बना दिए. यानी कि 1 इंच की मोटाई ऊपर है तो नीचे 3 इंच की है. तो जब आप साइड से भी पेंटिंग को देखते हैं तो इट फील्स लाइक अ स्कल्पचर ऑलमोस्ट. तो ये जो एक 3 डायमेंशनलिज्म है, जैसे अगर ये पेंटिंग को देखें हम, मुझे ख़ास ये इनकी बहुत पेंटिंग पसंद है. एक सेंस ऑफ बॉक्सेस, मतलब जो अनीता करने की कोशिश कर रही हैं वो मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंटेड है. कि दिस इज़ अ बर्ड इमर्जिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर बॉक्सेस आप देखें तो बहुत परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जबकि आप कैनवस देखें तो बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल शेप है, मतलब कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है इसमें. तो हम सब की यही कोशिश होती है एज आर्टिस्ट टू ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, कि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे परे हम कुछ कर पाएँ, लोगों को सरप्राइज़ कर पाएँ. बच्चों को भी हम ये चाहते हैं कि सीखें. हम, हमारी बात अभी चल रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट exhibition, not only for Anita but for art overall in emerging India. To break a structure, मतलब हम बचपन से आर्ट क्लास में सारी टीचर्स बोलती हैं मार्जिन बनाओ, मार्जिन के बाहर नहीं जा सकते हैं, कलर लाइंस के अंदर करो, सूरज सिर्फ ऑरेंज और लाल ही हो सकता है, नीला सूरज नहीं हो सकता, पानी ब्लू ही होगा, पानी को आप लाल नहीं बना सकते. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे क्रिएटिविटी को बंद करते हैं. मेरी आई वाज जस्ट टेलिंग अनीता, मेरी 6 साल की छोटी बिटिया है अमेया, और उसके टीचर्स ने जब उससे कहा कि नहीं अमेया आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो मैंने एक्चुअली फ़ोन करके टीचर से बात की कि मैंने कहा नहीं सीखना है आर्ट, उसे जो करना है वैसे करने दीजिए आप प्लीज़, हम फीस वैसे भी भर रहे हैं. मैं उसकी क्रिएटिविटी और उसके इमेजिनेशन को सीमित नहीं करना चाहता. तो आई थिंक कि आज का एग्जीबिशन इस मायने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है. अनीता ने एक बहुत अच्छी पहल रखी है, एक सोशल मैसेज रखा है कि बच्चों को, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को एक फार्मा में
बंद करना, एक डब्बे में डालना ज़रूरी नहीं है. यू कैन लिटरली गो आउट ऑफ द बॉक्स. अनिता जी थोड़ा सा ये जो लाइफ में आपने पूरी क्रॉस कर दी है लाइफ में सर अवतरण अब तक हमने जैसे कि अगर पानी का जो कलर है ब्लू होना ही चाहिए, यहाँ पर पूरा डिफरेंट कर दिया आपने. थोड़ा सा इसके पेंटिंग के बारे में अगर आप अवतरण के बारे में अगर आप बताओ. And the moving away from the regular canvas. Okay. So, Avtaran means, literally means arriving or landing. So I personally feel I've arrived or landed at the message I'm trying to convey through my art. So, and in going in for the irregular shapes, although I'm not trying to preach or convey a message or send across anything, but what my personal intention was, what I thought was that art should not have any rules or regulations. How we are taught in schools के ऐसे ही तुम्हें, like Vivek ji has I think got my message very clearly, and what all he spoke with exactly what I'm trying to convey, what my purpose was. So like the canvases don't have to be square. Also I'm trying to draw a lot of attention to the canvas itself, which is very underrated. You know, nobody notices a canvas. आप painting देखेंगे उसमें canvas is taken for granted. So the medium like canvases, I'm drawing attention to that. They also hold a lot of power. Just by bending the canvases, I have created a lot of difference. And in going in the irregular thicknesses and the shapes of the canvases, it's also breaking free from stereotypes, especially in art, you know, in art education in our primary schools. They need to be, it's the same art education which has been going on ever since British Raj, you know, our intermediate art exams, etc., which children go through. So the kids are literally, you know, taught to draw in a certain manner. Like if you're drawing a figure, उसके हाथ पैर सब proportion में होने चाहिए. छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है. And if you choose to go further in art education, in your colleges you are taught express yourself. हाथ पैर लंबे होंगे उसका ये मतलब होता है, ये मतलब होता है. So why first mold the child's brain with you are in your art colleges they tell you a child is the best artist, you know, क्योंकि उसको कुछ सिखाया नहीं हुआ. तो फिर क्यों हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ऐसा ड्रॉ करो, and if we just let them be how they are and express themselves, I think art will be more purposeful than just a hobby, you know, and art education needs to get more attention by the authorities. अंजलि जी, जैसा कि मैंने बताया कि सारी पेंटिंग आप बहुत ही ध्यान से देख रहे थे एंड से लिख रहे थे, आपको कौन सी वाली पसंद आई एंड अगर घर ले जाना हुआ तो कौन सी वाली लेके हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं. मुझे ये बहुत पसंद है ये पेंटिंग ख़ास. इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. एक तो जब आप पेंटिंग को दूर से देखें, अप्रिशिएट करें, तो मुझे लगता है कि इट्स एन आउट टू इन, यानी कि ये पेंटिंग बाहर से आपको अंदर की तरफ ड्रॉ करती है, एक केंद्रित करती है, आपका ध्यान आकर्षित करती है बिल्कुल सेंटर में. वो एक बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आप एक पेंटिंग को देखते हो और फिर देन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इट सेंट्रली. तो एक उसके अंदर एक हिप्नोटिक काइंड ऑफ फीलिंग है. आपको लगता है कि थोड़ा सा वो पेंटिंग आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही है. सो आई लव दैट. आई लव जिस तरह से कलर्स ग्रेजुएट होते हैं. अगर आप आउटर लेयर्स में देखें तो सारे कलर्स डार्कर हैं, एंड जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वो डार्क टू लाइट जा रहे हैं. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे एक खालीपन सा है, एक खुलापन सा है. और मेरे लिए पर्सनली इट फील्स लाइक इतनी सीमाएं आजकल ज़्यादा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी करो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है लोगों की, है ना. तो छोटी छोटी बात पे हम एज अ सोसाइटी लोगों को सोशल मीडिया पे गाली देना लग जाते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि सबकी इतनी अपेक्षाएं हैं. सब बोलते नहीं आपका बिहेवियर ऐसे ही होना चाहिए, आपका पहनावा ऐसा ही होना चाहिए. ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये सोसाइटी आपको ये बॉक्सेस देते जाती है. एंड फाइनली एज यू ग्रो ओल्डर यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यार ये डिब्बे मेरे नहीं हैं. ये सब अगर मैंने इनको अपना लिया तो ये मेरे पिंजरे बन जाएंगे, केज बन जाएंगे.
तो आई लव दिस बिकॉज आई फील कि ये जो पंछी है ये आप हैं, मैं हूँ, और हम ये सारे बॉक्सेस को तोड़ के निकलना चाहते हैं. has taken two meanings out of it. पहले बोलते हैं इट्स ड्राइंग, ये मेरे को अंदर खींच रहा है, पेंटिंग ऐसे लग रहा है अंदर खींच रहा है. एंड देन इन हिज सेकंड व्यू ही हैज सेड द बर्ड इज एमर्जिंग, वो सारे बॉक्स तोड़ के बाहर निकल रहा है. तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल परसेप्शन ऑफ हिज. एंड आई थिंक इसी मौके पर भी आप ऐसे beautiful- हाँ, ये जैकेट, ये मेरा एक बहुत फेवरेट डिज़ाइनर है, वेरोइन मारवा. तो आई टोल्ड हिम कि मैं अनीता के एग्जिबिशन को इनाग्रेट करने जा रहा हूँ. आई वांट समथिंग आर्टिस्टिक. तो उसके ये आर्टिस्टिक क्रिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज ये भी इतने सारे पैटर्न्स विद इन पैटर्न्स है, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज़ों को ब्रेक करता है. तो मुझे बहुत पसंद आया. तो के साथ में सब मैचिंग हाँ बिल्कुल. एंड इसके Thank अलावा you. ये कि मैंने इनसाइड एज देखा है, एंड अब नए साल की भी शुरुआत होने वाली है, तो ढेर सारे प्रोजेक्ट अगर आप बता सकते हैं कि हाँ भाई. कौन सा पहले आने वाला है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी तो सब पता है कि क्या क्या है. इनसाइड एज 3 के सक्सेस के बाद अब नाउ वी आर शूटिंग धारावी बैंक, जो अभी वापस आते ही मैं अभी आज निकल रहा हूँ विदेश, बाहर वापस आऊँगा फर्स्ट वीक में, एंड आई स्टार्ट शूटिंग विद अन्ना. धारावी बैंक इज़ वेरी एक्साइटिंग सीरीज़. तो उसके लिए बहुत हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं. बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में. ऐसा रिक्रिएट किया है धारावी को कि सोच ही नहीं सकते हैं कि ये एक्चुअल सेट लगा है या आप एक्चुअल धारावी में शूट कर रहे हैं. तो बहुत मज़ा आ रहा है. स्केल बहुत बड़ा है. तो वो फिनिश करूँगा मैं बिटवीन जनवरी एंड फरवरी. उसके बाद यूके निकलूँगा टू स्टार्ट शूटिंग समथिंग न्यू इन मार्च, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है. फिर एक जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी एक अच्छी हम अनाउंसमेंट करेंगे. इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, जिसमें मैं एक्ट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा हूँ. जॉनर बता सकते हैं आप? स्पेस मेरी तरह थोड़ा पागल है. यही बॉक्सेस तोड़ने वाला स्पेस है. जब आपको मैं अनाउंसमेंट पे मिलूँगा दोबारा, मैं आपको याद दिलाऊँगा हमने क्या बात की थी. सो इट्स अ ओवरऑल फन टाइम राइट नाउ यार. बहुत मज़ा आ रहा है. एंड साउथ में कड़ुआ चली रही है, उसकी आई थिंक जनवरी में लास्ट शेड्यूल फिनिश हो जाएगी. तो वो भी चल ही रहा है. थैंक यू. मैडम, थैंक यू सो मच. एंड गुड लक. संभाल के बेटा, संभाल के. कैसे हो? Yeah. You have Meghna's number, na? Yes. Thank you so much for coming. It's my pleasure. Have a safe flight and your All the best for your wedding. yeah. Nikesh, are you here? Nikesh, ये baby का He's inside. अरे भाई जरा इनका होने देना. हो गया जरा पीछे जरा. This way. Look this way. थोड़ा ऐसा हो जाओ. ए भाई, अरे ए ऐक ना जरा, देख यहाँ फोटो दे. अब अगर नहीं हुआ ना तो मैं सबको हटाऊंगी यहाँ से. हाँ रुको 1 मिनट जरा. प्रॉपर Come, you come ना. It's a family. ठीक है. या रेडी. Nikesh is not. One sec. सिंगल Here, please. This way. Thank you. लेट हो रहा है जान. He's late. एक्सक्यूज मी नंदिनी, एक मिनट. भाई रुक जाना भाई. अरे ये जरा पीछे जाओ. हो गया तेरा. आए दे दो. अरे रुकना यार. अरे लाइन लगी. मैडम नहीं 2 मिनट ना मतलब. हाँ 1 मिनट हो गया. ए भाई थाम जरा 2 मिनट थाम. एक जरा सेकंड. मागे या. Okay, चलो. हाँ चल 1 मिनट जरा पास पीछे जाओ. यस सर 1 मिनट. ए दोस्त, ए भाई जरा सुनो ना. 1 मिनट यार, थोड़ा साइड हो जाओ. एक सर 1 मिनट. Bye bye. Bye kid.